Hello to all the student of MCOM first year. I am Professor Sonia Guva from SSGM College. In this lecture, we have to discuss about our subject income tax. Income tax. So now this is our fourth lecture. We have to discuss about our first chapter. In first chapter lecture, I have given you syllabus. In second lecture, we have started our first chapter, which will be depend on the concept and definition. In first lecture, we have to discuss contain, introduction, meaning, scope of income tax in first lecture. In third lecture, we have to discuss, like in last lecture we discuss the components of income tax law. Components of income tax law or difference between direct taxes and indirect taxes, and also discuss the important definition and the fundamental definition related to the concept like Income Tax Act 1961. The terms will be given as per their sessions. So the term is nothing but the concept which relates the and most important part of income tax. We discuss the fourth term. We have completed 4 to 5 terms in last lecture. Like first agricultural income, the section of agricultural income is 2.1 subsection 1a, and secondly we have also completed ACC in last lecture, assessment year and previous year. And now we move forward to, in this lecture we move forward to our next important term will be the person. So as per the in person, the section of a person is related to section 231. The person will be is regulated as per the Income Tax Act as per the section 231 definition in the taxes. So the person is that in income tax who will be liable to pay taxes. Person is nothing but an individual one and any kind of person which have been liable to pay taxes. ओके, तो पर्सन कौन है? व्यक्ति। इस इनकम टैक्स के अंतर्गत कौन कौन से पर्सन है जो लाइबल हैं टू पे टैक्स? इनकम टैक्स के अंतर्गत कौन कौन से मेंबर और असीसी और पर्सन है जो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए? तो इसमें हम देखेंगे पर्सन विल इंक्लूड इंडिविजुअल पर्सन। इसमें यहाँ पे इनके टोटली 8 पर्सन है। 8 पर्सन विल बी 8 काइंड ऑफ प्रोफेशन, इनके प्रोफेशन होंगे या कोई भी पार्टीज होगी, कंपनीज हैं। तो ये लाइक ऑफ पर्सन, ये लोग हैं, वो लोग हैं जो एलिजिबल हैं टू पे टैक्सेस एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। तो पर्सन का एक इंडिविजुअली सेशन दिया गया है। पर्सन इज रिलेटेड अंडर सेक्शन 231 के अंडर। पर्सन के अंतर्गत इसमें सारे वो व्यक्ति के नाम मेंशन है जो लोग व्यक्ति लाइबल है टू पे टैक्स और उनके प्रोफेशन एज पर देयर प्रोफेशन। तो फर्स्ट इसमें यहाँ पे हम लोग पॉइंट है एंड इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आई हैव टू गिव यू इन अ नेक्स्ट स्लाइड। The person will include many person is like individual person, Hindu undivided family, company, firm. Fifth will be an association of person. Six, a body of individual whether incorporated or not. Seventh, local authority. Or eighth, last will be every artificial judicial person not falling within any of the preceding sub clauses. ओके, सो इनके ये हैं, ये लोग, ये दैट पर्सन विल बी लाइबल टू पे टैक्सेस. ओके, so that person will be liable to pay taxes and their explanation I have given you in next slide. Okay, first will be individual person. Individual person means it refers to a natural human being, male or female. इंडिविजुअल व्यक्ति का मतलब क्या होता है? एन इंडिविजुअल मीन्स जो व्यक्ति लाइक अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग, कोई व्यक्ति मेल, फीमेल और माइनर और अ मेजर पर्सन, तो वो लाइबल है टू पे टैक्सेस के लिए. सेकेंडली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? इट इज़ अ रिलेशनशिप क्रिएटेड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ हिंदू
law, the manager of Hindu undivided family is called its कर्ता एंड इट्स मेंबर आर को-पार्टनर. तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है जिसके अंतर्गत यानी कि रिलेशनशिप ऑफ बिल्डअप ऑफ मेंबर्स का. ओके, सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंतर्गत जो यानी कि हेड ऑफ फैमिली का रहेगा उस फैमिली के हेड को कर्ता बोले जाएंगे, और बाकी के जो मेंबर्स रहेंगे इस दिस ऑर्गेनाइजेशन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंतर्गत उन मेंबर्स को पोको पार्टनर्स कहेंगे. सो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंतर्गत जो भी मेंबर्स हैं हेड ऑफ द है, तो दैट पर्सन ही इज ऑल्सो लाइबल टू पे टैक्सेस. ओके, सो द थर्ड विल बी company. Company is nothing but an artificial person registered under the Indian Companies Act 1961 or any other law, but there has been changes. Now the Companies Act will be registered under 2030 Companies Act, but whether the Companies Act will be launched, Indian Companies Act will be launched in a 1956. Okay, सो इन कंपनी इज ऑल्सो टू लाइबल टू पे टैक्स. कंपनी क्या है? कंपनी अगर कोई व्यक्ति चालू करता है तो कंपनी ही भी टू लाइबल टू पे टैक्स एज पर उनका जो प्रॉफिट मार्जिन रहेगा बाय द 1 year दे दैट प्रॉफिट मार्जिन हाफ पोर्शन ऑफ देयर वेल्थ एंड देयर इनकम दे वुड बी पेड एज पर द टैक्सेस. ओके, though the fourth person who will be liable to pay tax, a firm. A firm is nothing but an partnership firm. Partnership firm means there has been 2 or 3 person has been started and one organization for as per their way, so they can be called up as a partnership firm, and that person and firm will be also liable to pay tax. If a firm will be partnership, may be registered or unregistered, so they can be also eligible to pay taxes as per the Income Tax Act. So this will be the 4 person who will be eligible to pay taxes, and the another person will be now the 5th person, association of person. 6 body of individual. एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब बहुत से लोगों की एक संस्था अगर कोई कहा जाएगा, व्यक्तियों की संस्था, तो वो संस्था भी एलिजिबल है पे टैक्स करने के लिए. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इफ सम कोऑपरेटिव सोसाइटी. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे मेंबर को, सहकारी सोसाइटी भी है, सहकारी सोसाइटी है, और कोई मार्केट अलाइज कंपनी है, नेफ्ट है, सो दे आर द such kind of person who also eligible to pay tax. Cooperative organization, all types of cooperative organization will have to pay tax as per their rules and regulation, as per the tax requirement and the tax regulated for to the cooperative organization or marketalized company or NEFT. So they are also eligible to pay taxes as per their regulation, rules and regulation and clauses and their amount of taxable charges. Okay, and local authority. Local authority is what kind of that person who also pay a taxes is municipality, panchayat, cantonment board, port, trust, etc. called local अथॉरिटीज़. तो इनको क्या कहा जाता है? लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर कौन कौन सी है? म्यूनसिपाल्टी है, पंचायत है, जैसे कि कोई गांव पंचायत, एंड कंटेनमेंट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट एक्सेट्रा आर ऑल्सो कॉल्ड लोकल अथॉरिटीज़. सो इनको क्या कहा जाता है? लोकल अथॉरिटीज़. तो ये भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे टैक्स पेड अप करती हैं एज पर द गवर्नमेंट चार्जेस द अमाउंट towards to them. So they are also paid a person who is to pay a tax as per the rules and regulation. Okay, and the last will be artificial judicial person. So artificial judicial person क्या है? पब्लिक कंपनी जो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के थ्रू पास आउट होती है, और वो नंबर ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन
पब्लिक कंपनी इन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अंतर्गत कौन सी रहेगी? द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, the public limited corporation established on the special act of legislature and a body having juristic personality of its own are known as judicial person. So, okay, so they have also to pay a tax as per the university applicable important their category wise. Okay, so university are also important example of this category. ओके, सो पब्लिक रिलेटेड कंपनीज अगर होगी और अगर बहुत नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी, यूनिवर्सिटी जस्ट लाइक पुणे यूनिवर्सिटी है, सो इसके जो चार्जेबिलिटी स्टूडेंट्स के जो अलॉटमेंट्स ऑफ अमाउंट्स रहते हैं, तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये भी टैक्स पेड करती हैं एज़ पर द जुरिडिक्शन. सो एज़ पर द जुरिडिक्शन ने जो टैक्सेस यूनिवर्सिटीज़ से भी कलेक्ट करते हैं. सो ये क्या है? एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जो यानी कि पब्लिक फिगर है बट दे आर ऑल्सो पे अ टैक्स. तो ये क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अंतर्गत कौन सी आती है? पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और अ यूनिवर्सिटी. अगर एग्जांपल दे पब्लिक लिमिटेड कंपनी और यूनिवर्सिटी, बिकॉज ये पब्लिक फिगर है बट दैट पब्लिक फिगर इज ऑल्सो टू लायबल टू पे अ टैक्स, और ये ऑल्सो दे हैव गिव टू टैक्स टू द country, towards their country, and they have to pay as per the time to time. Otherwise they have also to pay a penalty on their taxes. Okay, so that kind of 8% who will be eligible or eligible to pay tax as per the person will be launched as per the session. So that can be of person. So these are the 8% who will be liable to pay taxes. Okay, now we move forward to our next slide. In next slide we discuss about the income. This is also a very important term or a definition which can be regulated as per the session 2 subsession 24. Income is nothing but the income which can be earned by an person, and that income and their wealth they have also to pay a taxes on the time duration basis or a basis of a charges of their income. So income के अंतर्गत कौन कौन से रिलेटेड इंक्लूड होंगे? प्रॉफिट और गेन. ओके, इनकम में क्या है? प्रॉफिट एंड गेन. प्रॉफिट एंड गेन्स हम क्या कहेंगे? ओके, अगर इनकम के बेसिस पे इफ अ सम सैलरीड पर्सन अर्निंग देयर इनकम और इफ अ पर्सन who have to go towards the profession, अगर कोई इनकम सैलरीड से पर्सन अर्न कर रहा है और प्रोफेशन के थ्रू अर्न कर रहा है, तो उसके जो प्रॉफिट और गेन्स रहेंगे उसके टूवर्ड्स के अलावा जो उसका प्रॉफिट होगा और जो उसकी वेल्थ होगी, सो वो दैट वेल्थ दे हैव टू पे एज पर अ चार्जेस ऑफ टैक्स. तो वो जो वेल्थ रहेगी तो वो क्या रहेगी? उसकी वेल्थ और जो इनकम है उसकी पर्टिकुलर सैलरीड प्रोफेशन और अदर सोर्स ऑफ इनकम, सो दैट प्रॉफिट एंड गेन्स दे हैव टू पे एज पर अ टैक्स अमाउंट. ओके, सो ये इनकम के अंतर्गत रिलेटेड इंक्लूड होंगे. डिविडेंड इज नथिंग बट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट. डिविडेंड का सिंपल मीनिंग क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. Okay, so dividend is nothing but a rate of interest which can be collected by an assessee from their income. Okay, and the third in income also include voluntary contribution received by the trust or created wholly, partially or charitable charitable or religious purpose or by institution acceptably wholly or partially for search of an association or institution referred in clause 21 or 23. सो कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम है, तो उनका जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अमाउंट है एज पर द रिलेटेड, तो होली और पार्शली, मतलब होल टाइम के लिए और पार्शली जो अमाउंट रहेगा दे कैन ऑल्सो टू हैव कॉल अप एज एन इनकम. तो वो उनकी क्या रहेगी? होली पार्शली द इनकम ऑफ दैट charitable trust, and they can be referred as per the institution in the clause 21 and 23. So this will be included in incomes.
ओके, सो दिस विल बी ऑल्सो इंक्लूड इन इनकम। सो इनकम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि इनकम के अंदर क्या रहता है, प्रॉफिट और गेन। और इनकम कैसे रहती है, अगर हम लोग कोई पर्सन पर्टिकुलर सैलरी प्रोफेशन की इनकम एनालाइज कर रहे हैं, प्रोफेशन, तो प्रोफेशन को उसका सैलरी मिलती है एज पर द टाइम, ईयरली बेस, मंथ बेसिस। सो मंथ बेसिस पे 30,000 दे हैव टू अर्न, एंड दैट दे हैव टू अर्न अर्निंग एज पर द प्रॉफिट और इंसेंटिव। अगर होली ईयर का वो कैलकुलेट करता है अपनी इनकम, तो प्रोफेशन की इनकम, टोटल इनकम अगर आ गई है, तो टोटल इनकम के बाद दे हैव टू ऑल्सो पे अ टैक्स अमाउंट और टैक्स लेबिलिटी अमाउंट ऑफ देयर इनकम। तो जो उनका प्रॉफिट और गेन है पर्टिकुलर पर्सन का, सो दे कैन बी गेन इज कॉल अप इनकम, एक्स्ट्रा इनकम। और डिविडेंड क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट करी है और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, इन्वेस्टमेंट का आउटपुट आता है, तो उसको क्या कॉल अप करा जाएगा, वी हैव टू कॉल अप एज एन डिविडेंड। ओके, एंड थर्ड, द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव। अगर कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके हम लोग का यानी कि कंपटीशन ऑफ टैक्सेशन कर रहे हैं, तो उसका जो टैक्स लेबिलिटी रहेगी और काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो इनकम में इंक्लूड होगा, इनकम में इंक्लूड होगा ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट। और वो कंट्रीब्यूशन दे कैन बी रिफर्ड एज पर द सेशन 21-23। ओके, so now all of you will understand that concept, and next concept will be, we have to discuss in next slide. Okay, next slide we have to discuss the rate of taxes, the rate of taxes. Okay, as per we have now move forward to 2019-20 का रेट ऑफ टैक्सेस देखेंगे। इन दिस ईयर ऑल्सो अभी रेट ऑफ टैक्सेस लॉन्च हुए हैं, बट हम लोग प्रीवियस ईयर के रेट ऑफ टैक्सेस को कैलकुलेट करके, क्योंकि रेट ऑफ टैक्सेस of previous year will not change in a current taxes rate also. Okay, there had been small changes will be related, but nothing will be changes in a last 2 years. Okay, so rate of taxes applicable for the financial year 2019-20. The tax rate applicable on income of a person depends on the following. Okay, so rate of taxes क्या है कि किन किन रेट ऑफ टैक्सेस कब कैलकुलेट हुआ जाता है, कोई भी फाइनेंशियल ईयर का हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं, ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ईयर कोई भी जो रेट ऑफ टैक्सेस में पर्टिकुलरली द इनकम के ऊपर रेट ऑफ टैक्सेस चार्जेबल होता है। और ये इनकम किसकी, पर्टिकुलर पर्सन और असीसी है। पर्सन में हमने इंक्लूड करा कि उन सारे पर्सन 8% को, लाइक इंडिविजुअल है, फर्म है, आर्टिफिशियल पर्सन, बॉडी रेगुलेटरी, तो ये सारे पर्सन हैं, तो इनकी इनकम पे रेट ऑफ टैक्सेस सेबल विल बी चार्ज। और ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट विल बी कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर एंड इंडिविजुअल ऑफ फर्म कंपनी। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है, रेट ऑफ टैक्सेस किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, विल कैन बी इंडिविजुअल पर्सन, ओके, एंड फर्म और कंपनी का। Okay, and second category will be category of income, normal tax rate on total income and special tax rate on specified income. ओके, सो सेकेंड इनमें क्या रहेगा कि रेगुलर इनकम बेसिस पे अगर हम कैलकुलेट करें, तो रेगुलर नॉर्मल टैक्स रेट क्या रहता है, विच कैन बी माइनस फ्रॉम द total income and the special rate for providing a specified income. So tax rate of taxes will be charging on a income of a particular person. रेट ऑफ टैक्सेस किसके ऊपर डिपेंडेबल चार्जेबल किया जाता है, पर्टिकुलरली द इनकम ऑफ अ पर्सन्स, इनकम ऑफ अ पर्सन। सो नेक्स्ट स्लाइड वी हैव डिस्कस कि किन किन की इनकम पे करंटली चार्ज है। करंट इनकम टैक्स रेट, करंट इनकम टैक्स रेट में हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि करंट इनकम टैक्स रेट हमने किसका लिया है, 2019-20। सो करंट ईयर और फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर, करंट ईयर और फर्स्ट में इनकम टैक्स रेट कितना है, पर्टिकुलरली जनरल पब्लिक बिलो 60 ईयर एज, 60 साल से जो व्यक्ति पब्लिक हेली है, जो 60 साल से पहले के 60 साल से पिछले के जो लोग हैं जिनकी एज 16 ईयर्स से कम है, बिलो द 16 ईयर्स, तो उनकी इनकम रेंज कितनी है। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, टैक्स रेट हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं कि उनकी व्यक्ति की कितनी इनकम है पर्टिकुलरली, और उनके टैक्स कितने परसेंटेज उनकी इनकम पे
चार्ज करा जाएगा। ओके, सो नॉर्मली अगर जनरल पब्लिक है बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स, तो उनकी एज 60 साल से कम है, तो उनकी इनकम अगर अप टू 2.5 लाख है, अगर उनकी इनकम 2.5 लाख है, तो टोटल इनकम उनकी अगर 2.5 लाख है पर्टिकुलर पर्सन की सिक्स बिलो द 16 ईयर, तो उनका टैक्स अमाउंट क्या रहेगा? नील। द टैक्स रेट विल बी नील ऑफ दैट पर्सन। ओके, सो अगर उनकी टोटल उनकी इनकम अगर पर्टिकुलरली इनकम 2 से 2.5 लाख तक की है, तो उनकी इनकम का टैक्स रेट अमाउंट है नील, तो उनकी इनकम पे कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। ओके, एंड इफ द इनकम अबव, अगर इनकम अबव है 2.5 लाख से 5 लाख के अंतर्गत अगर इनकम है, ओके, 2.5 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम, तो उनके ऊपर कितना परसेंटेज, उनकी इनकम पे कितना टैक्स रेट चार्ज होगा? विल बी 5%। तो नॉर्मली जो जनरल पब्लिक बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स के व्यक्ति के लोगों के लिए, ओके, तो नॉर्मली उनका के ऊपर टैक्स रेट कितना चार्ज होगा? देयर विल बी 5%। इफ द इनकम अबव 5 लाख एंड बिलो 10 लाख, ओके, अगर इफ थर्ड में देखें, अगर इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख से कम है, तो उनकी इनकम पे टैक्स रेट कितना कैलकुलेट होगा? अराउंड 20%। अराउंड 20% विल बी चार्जेस ऑन देयर इनकम। ओके, एंड इफ द इनकम, अगर फोर्थ लास्ट में देखेंगे कि अगर हम लोग बिलो द 16 ईयर, इफ द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और असीसी हैव अबव मोर देन 10 लाख, अगर 10 लाख से ज़्यादा तक की है उनकी इनकम, तो उनकी इनकम पे टोटल टैक्स रेट कितना परसेंटेज चार्ज होगा? अराउंड 30%। ओके, अराउंड 30%, और इन पूरा का पूरा टोटल चार्जेबल रहेगा। ओके, अब सीनियर सिटीजन्स के लिए, सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से ऊपर की है बट 80 साल से कम की है। ओके, सीनियर सिटीजन की एज का पीरियड, एज का ड्यूरेशन कितने में दिया गया है? 60 to 80 तक में सीनियर सिटीजन तक की एज कितनी दी गई है? वो लोग की इनकम अगर कितनी है और वो कितना एलिजिबल है टू पे अ टैक्स रेट। ओके, सो द सीनियर सिटीजन कितनी एज के, यानी कि यहाँ पे मेंशन किया गया है 60 to 18 ईयर्स के, तो उनकी इनकम अगर रेंज अप टू 3 लाख है, अगर उनकी 3 लाख तक है इनकम, तो उनका टैक्स अमाउंट रेट विल बी नील रहेगा। उनका टैक्स अमाउंट रेट क्या रहेगा? नील। ओके, इफ द इनकम इज अबव 3 लाख and less than 3 lakh, less than 5 lakh, sorry, less than 5 lakh, that they have to pay around, the tax rate will be 5%। अगर उनकी इनकम अबव 3 लाख है, 3 लाख से अबव है बट 5 लाख से कम है, तो 3 to 5 लाख के ड्यूरेशन में अगर उनकी इनकम है, इनकम रेंज है, तो वो कितने परसेंटेज टैक्स रेट पेड करेंगे? दे विल बी पेड टैक्स रेट अराउंड 5%। ओके, द सीनियर सिटीजन member or person, senior citizen member or a person, they have to pay the range of amount as per their taxes. If their income will be above 5 lakh but less than 10 lakh, अगर उनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है बट 10 लाख से कम तक की है, तो वो कितने अमाउंट, 10 लाख तक है, तो वो कितने परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंटेज ऑफ अमाउंट करेंगे? दे विल बी, उनकी इनकम पे रेट ऑफ अमाउंट कितना चार्ज होगा? विल बी 20%, विल बी 20% टैक्स रेट विल बी चार्जेस ऑन देयर इनकम। ओके, सो टैक्स रेट अगर उनकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक के बीच में है, तो वो कितने परसेंटेज, उनकी इनकम पे कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट इंक्लूड होगा? टैक्स चार्ज होगा 20% ऑफ देयर टोटल इनकम, उनकी टोटल इनकम के पर 20%। ओके, अबव 10 लाख, अगर उनकी 10 लाख से ज़्यादा तक की सैलरी है, तो टैक्स कितना चार्ज होगा उनकी टोटल इनकम पे? विल बी अराउंड 30%, विल बी अराउंड 30%।
ओके, इफ अ पर्सन, यहाँ पे थर्ड में दिया गया है वेरी सिटीजन पर्सन अबव 80 ईयर्स ऑफ एज। अगर 80 साल से उनकी किसी व्यक्ति की पर्सन की या सीसी की 80 अबव से ज़्यादा एज हो तो वो कितनी उनकी अगर इनकम और टैक्स कितना परसेंटेज पे करेंगे, वी हैव टू सी इफ़ देयर इनकम विल बी अराउंड मोर देन 5 लाख। 5 लाख से अगर 5 लाख तक है उनकी इनकम तो वो टैक्स रेट उनका क्या रहेगा, सीनियर मोर सीनियर वेरी सीनियर सिटीजन के लिए विल बी नील। टैक्स रेट अमाउंट क्या रहेगा, नील। इफ़ उनकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक के बीच में है, उनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है पर 10 लाख के अंतर्गत है, तो वो टैक्स रेट कितना पेड करेंगे, विल बी 20% ऑफ देयर टोटल इनकम, वेरी सीनियर सिटीजन पर्सन। और इफ़ देयर इनकम, अगर उनके पास 10 लाख से ज़्यादा तक की है, मोर देन 10 लाख, सो दे हैव बी लाइबल टू पे अ टैक्स रेट अराउंड 30% ऑफ देयर टोटल इनकम। सो ओके, इसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है टैक्स रेट। 3 कैटेगरीज मतलब इंडिविजुअल पर्सन, जो अराउंड इंडिविजुअल पर्सन के में रेसिडेंशियल पर्सन है, और क्या अराउंड सीनियर सिटीजन। तो एज पर द एज ड्यूरेशन इनकम टैक्स रेट कैलकुलेट करते हैं। टैक्स रेट हम लोग एज पर द एज कैलकुलेट कर रहे हैं। इफ़ मोर देन 60 ईयर्स का उनका ड्यूरेशन है, और उनके ये टैक्स रेट के अलावा एडुकेशन फीस भी इनके ड्यूरेशन में कैलकुलेट होगा। एडुकेशन प्लस हेल्थ इज ऑल्सो इंक्लूडेड एज पर द टैक्स रेट। अगर इंडिविजुअल, यहाँ पे मेंशन फर्स्ट लाइन में क्या किया गया है, रेसिडेंशियल इंडिविजुअल पर्सन 16 ईयर्स का है तो उनका अमाउंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उनका कितना टोटल से लेके यहाँ पे अबव 10 लाख तक का ड्यूरेशन दिया गया है कि अबव 10 लाख तक का, और उनका परसेंटेज भी रेट दिखाया गया है कि कितना परसेंटेज रेट ऑफ चार्जेबल होगा उनकी टोटल इनकम के ऊपर। ओके, सो सीनियर सिटीजन यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है इंडिविजुअल पर्सन को, और अ नॉर्मल टैक्स रेट उनका कितना रहेगा, और अ स्पेशल टैक्स रेट ऑन अ स्पेसिफाइड इनकम का कितना रहेगा, पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड इनकम का टैक्स रेट भी कितना रहेगा। तो 3 कैटेगरी, बिलो 60 ईयर्स, और सीनियर सिटीजन अबव 60 ईयर्स, और 60 ईयर्स टू 80 ईयर्स के ड्यूरेशन में सेकंड दिया गया है, और वेनी सिटीजन पर्सन मतलब 18 ईयर्स अबव। ओके, सो इनके ऊपर टैक्स, इनकी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए, और इनके ऊपर कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स राइट रहेगा, और कौन सा कितनी इनकम पे इनकी अगर इनकम रेंज कितनी है, और अगर इनकी इनकम का है कितना अमाउंट है, कौन किस पे इनकम पे कितनी इनकम पे अमाउंट नील रहेगा टैक्स रेट, ये भी देखेंगे। तो ये अभी हमने इस स्लाइड में शो अप किया है कि तीनों का कितना रहेगा। प्लस यहाँ पे इन तीनों कैटेगरीज के साथ एक यहाँ पर ये एक और चीज़ इंक्लूड हो रही है। इन तीनों कैटेगरीज के साथ साथ हर कैटेगरी के साथ एडुकेशन फीस 3% प्लस हेल्थ फीस ऑफ 1% इनकम टैक्स रेट टू ऑल टैक्स पेयर। ये जितने भी टैक्स पेयर कैटेगरी के हैं 16 ईयर्स के, अबव 16 ईयर्स टू 80 ईयर्स, और अबव 80 ईयर्स। ओके, सो ये जो इतनी ये तीनों टैक्स पेयर की कैटेगरी है, एज कैटेगरी है, तो इन तीनों टैक्स पेयर की कैटेगरी को एजुकेशन फीस प्लस हेल्थ फीस, तो ये दोनों को मिला के 4% ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फीस दे हैव टू पे ऑल टैक्स पेयर of each and every categories like general public below 16 years, senior citizen above 16 years, and very senior citizen above 80 years. So they have all 3 categories taxpayer, they have to pay education plus health fees around 4% also, or टैक्स क्रेडिट अमाउंट अगर इनकम 5 लाख और उससे कम तक की है, अंडर सेक्शन 87A दे हैव टू पे टैक्स क्रेडिट अमाउंट 12,500 ऑफ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनकम। इफ़ अगर इनकम 5 लाख तक की है, ओके, अबव 5 लाख, तो अगर अबव 5 लाख है और लेस देन 5 लाख है, सो अगर 5 लाख तक की इनकम है तो उसके ऊपर कितना यानी कि कैलकुलेट अबव 5 लाख भी है। अबव यहाँ पे लेस लिखा गया है बट दे कैन बी अबव 5 लाख है, तो उनकी इनकम में से 12,500 विल बी चार्जेबल टू हैव टू
pay a tax credit around 12,500. ओके, सो ये सेकंड पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया गया है. सो ये सारी जो टैक्स पेयर है, ये जितने भी टैक्स पेयर कैटेगरी वाइज है, एज वाइज है, उन सबको ये हैव टू फॉलो ये दैट tax credit basis 12,500 of the total income which can be above 5 lakh or less 5 lakh under section 87A के तहत. Okay, and the third will be standard deduction rupees 50,000 for salaried and pensioner. तो standard deduction amount कितना चार्ज होगा? अराउंड 50,000 फॉर अ सैलरीड. अगर जिन कोई सैलरीड पर्सन है तो अराउंड स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट 50,000, और किसी की पेंशन आती है तो दे हैव टू call up as and deduction amount will be standard deduction amount of rupees 50,000 for a salaried or a pensioner person. There are no slab for male or female. तो इनकम अगर हम किसी की भी कैलकुलेट, यहाँ इनकम टैक्स रेट, यहाँ स्लैब रेट मतलब इनकम टैक्स रेट, तो मेल और फीमेल के लिए कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है. दोनों के लिए टैक्स रेट इक्वल बेसिस पे रहेगा, but they can be called up as per the age. Okay, only the age the tax rate will be called. There is no difference between any kind के मेल के लिए टैक्स रेट अमाउंट अलग रहेगा, फीमेल्स के लिए अलग रहेगा. नो, दे हैव टू बी इक्वल टू पे अ टैक्स अमाउंट रेट, but as per the related their age, as per the related their income, so they can be called charge as per their income range. अगर उनकी इनकम रेंज जितनी रहेगी उसके बेसिस पे ही वो लोग टैक्स रेट अपनी टोटल इनकम पे पेड करेंगे. टैक्स रेट प्लस एडुकेशन फीस भी. ओके, प्लस एडुकेशन फीस इज ऑल्सो कैलकुलेट इन ऑल इनकम टैक्स रेट. ओके, सो ऑल टैक्स पेयर जो रहेंगे, ये तीनों टैक्स पेयर है, इनके साथ साथ एडुकेशन फीस और हेल्थ फीस भी कैलकुलेट होगी. तो एडुकेशन फीस और हेल्थ फीस मिला के 4% होगा, तो ये भी ऑल टैक्स पेयर को दे हैव टू पेड अप. ओके, सो ये टैक्स रेट है, हम लोगों ने कैलकुलेट करा. सो दे हैव बीन नो डिफरेंस इन करंट ऑल्सो टैक्स रेट. अभी के जो टैक्स रेट 2021 का जो अभी टैक्स पेयर अभी लॉन्च अप हुआ, तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज द ईयर विल बी एंडिंग इन 31st March. So so that's why we calculated and focus see the last year टैक्स रेट. ओके, तो लास्ट ईयर का इसलिए हमने टैक्स रेट देखा, बिकॉज 21st मार्च को 20 to 21st मार्च का जो ड्यूरेशन रहता है 2021, उसका जो अमाउंट टैक्स रेट अमाउंट है वो अभी बजट एनालाइज होने के बाद रहा है. बट वो ईयर एंड कब होगा? 31st मार्च को. तो देन द एक्चुअल current financial year rate will be, we have to see, but there is no difference between the current year and the previous year rate. now क्या चेंजेस, ज़्यादा रेट में चेंजेस नहीं हुआ है, तो करंटली ये टैक्स रेट पे हमने फोकस किया है. ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड. इन नेक्स्ट स्लाइड वी न्यू द कॉन्सेप्ट अबाउट टोटल इनकम. टोटल इनकम, ओके, टोटल इनकम किसको कहेंगे? द पर्टिकुलर all the income sources person who have to earn their income. जो particular persons है जो इनकम अर्न कर रहे हैं और उनकी जो पूरी की पूरी इनकम रहती है उसको टोटल इनकम बोलते हैं. we can call up a total income of that particular ACC income or a particular person who have earning the income. So total income is defined under section 2 subsection 45 with the scope defined by section 5 of the income tax act 1961 के तहत टोटल इनकम अंडर सेक्शन 245 के अंतर्गत डिफाइंड करी गई है विद द स्कोप ऑफ डेफिनेशन. इनकम टैक्स एक्ट का अगर सेक्शन देखें, टोटल इनकम का सेक्शन क्या रहेगा? सेक्शन 245 एंड विद द सेक्शन ऑफ इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत. तो टोटल इनकम क्या रहती है? टोटल इनकम इज नथिंग बट एन ACC gross total income is reduced by the amount of permissible deduction under section 80C और 80U के तहत. तो जो टोटल इनकम रहती है पर्टिकुलर ACC की,
टोटल इनकम क्या होती है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, जो ग्रॉस टोटल इनकम रहती है पर्टिकुलरली असीसी की, उसमें से टोटल इनकम वी हैव टू reduce and then we have to less than the all the income, or then we find out the total income of a particular assisi. जो ग्रॉस टोटल इनकम आती है पर्टिकुलरली असीसी की, जो यानी कि पर्टिकुलरली असीसी अगर हम कैल बोले तो पर्टिकुलर देयर सैलरीड पर्सन को अगर हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर सैलरीड पर्सन की टोटल इनकम, तो हमें कैसे टोटल इनकम मिलेगी, पहले पर्टिकुलरली जब आप किसी भी का अकाउंट को बेसिक सैलरी चार्ज करते हो तो उस आफ्टर ऑल द ग्रॉस सैलरी फर्स्ट वी फाइंड आउट। पहले हम अगर किसी सैलरीड पर्सन का स्टेटमेंट टैक्सेबल इनकम चार्ज कर रहे हैं, कंप्यूटेशन कर रहे हैं, तो देन वी फाइंड आउट फर्स्ट द ग्रॉस सैलरी के बाद क्या चार्जअप होते हैं कैलकुलेट करते हैं, हम डिडक्शन लेस करते हैं अंडर देयर सेक्शन। सैलरी पर का है, अगर हम इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले हम लोग ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करेंगे, देन फिर उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के तहत जो उनका डिडक्शन अमाउंट रहेगा उसको लेस करने के बाद हमें टोटल इनकम मिलती है ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। तो अगर पर्टिकुलर सैलरीड का है तो वो क्या होगी, टोटल इनकम ऑफ अ सैलरी। अगर प्रोफेशन की इनकम कर रहे हैं तो ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट कभी भी करने के बाद ग्रॉस सैलरी आफ्टर रिड्यूसिंग ग्रॉस सैलरी एंड द डिडक्शन gross salary, from gross salary we deduction less the deduction we find out the total income of a particular person who have earning the income, and that income from any kind of sources like salary, business and profession, salary from salary, income from house property, income from other resources, and income from capital and gain. Okay, so that salary or that sources of income, so they can be eligible to pay taxes, and they have find out their total income from the ड्यूरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इनकम। जो उनका अगर चार्जेबल करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम फाइंड आउट करने के बाद उस ग्रॉस टोटल में से हम लोग रिड्यूस क्या करते हैं, डिडक्शन। ओके, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C और 80U के बाद okay we find out the total income of a particular assessee. So that is the meaning of total income. ओके, सो टोटल इनकम यहाँ पे उनका सरचार्ज रेट बताया गया है कि अगर एक्सीड इनकम यहाँ पे मेंशन फर्स्ट में क्या गया है, 50 लाख से अबव है, बट डज नॉट एक्सीड, मतलब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। इफ़ मोर देन सैलरी विल बी 50 लाख, जो टोटल इनकम अगर कोई भी इन पर्टिकुलर असीसी की इनकम 50 लाख से अबव है, बट लेस देन 1 करोड़ है, तो सरचार्ज रेट उनकी टोटल इनकम पे कितना चार्ज होगा, विल बी 10%, विल बी चार्ज 10%। इफ इनकम मोर देन टोटल इनकम अगर पर्टिकुलर असीसी की मोर देन 1 करोड़ है, बट लेस देन 2 करोड़, बस लेस देन 2 करोड़, बट ज़्यादा 2 करोड़ से ज़्यादा तक का नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ से ज़्यादा और 1 करोड़ से 2 करोड़, तो वो कितना सरचार्ज रेट पेड करेंगे, दे हैव टू पे 15%। ओके, इफ एन पर्टिकुलर असीसी इनकम विल बी मोर देन 2 करोड़, बट दे हैव डज नॉट एक्सीड मोर देन 5 करोड़, कि 5 करोड़ से ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए उनकी इनकम, तो वो कितना टैक्स रेट पेड करेंगे, विल बी 20 surcharge rate, sorry, tax not surcharge rate, they have to pay 25%। इफ एन सीसी पर्टिकुलरली 5 करोड़ से ज़्यादा की अगर इनकी टोटल इनकम है, उनकी 5 करोड़ से ज़्यादा टोटल इनकम है, तो वो पर्टिकुलरली सरचार्ज रेट कितना पेड अप करेंगे अपनी पर सैलरी पे, टोटल इनकम पे, और टोटल इनकम फ्रॉम द सोर्सेज, सो वो दे हैव टू पे द टैक्स और सरचार्ज रेट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 37%।
सो ये सरचार्ज रेट है जो चार्जेबल पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड लिमिट के लिए किए देखा गया है। हम लोगों ने अभी दो कैटेगरीज के टैक्स रेट देख रहे थे, तो ये पर्टिकुलरली सरचार्ज रेट किस किस पे चार्ज होता है, पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लिमिट के, जो पर्टिकुलरली आरसीसी की जो सैलरी, ये पर्टिकुलरली वो इनकम रहती है, टोटल टैक्सेबल इनकम जो उनकी रहती है, तो उसके ऊपर सरचार्ज रेट कितने परसेंटेज ऑफ चार्ज होता है, वी हैव टू सी इन दिस slide. Okay, so now move forward to our next slide. In next slide, the scope of total income. The scope of total income we have to discuss in our next lecture. So now we have to stop this lecture on that now. So again next कौन सा यहाँ पे जो scope of total income हमने हमारे next lecture में देखेंगे. Hopefully you understand all the concept which I have to tell you in today's lecture. So all of you will be goodbye from me, and for attendance you have to follow that procedure. Okay, like this video, subscribe my channel, and there in comment box mention your name, class, or your particularly your group. Okay, so thank you to all of you student. Next point we have discussed in next lecture.